Okay, so in this lecture, we are going to cover these two topics, which are actually part of unsupervised learning. Why? This is unsupervised because we are actually working directly on the features without any worry about the target variables. Because we are actually trying to reduce the number of features. For example, I have total n features, and that last one is the target variable. So leaving the target one, if I want to reduce these n number of features, let's say to half of it, yeah, for let's say n is very large, let n be 1000, and I want to bring it down to maybe 3D. So that is a very big transformation, right? So that kind of thing we need to do, and so only the features we need to focus on. That's why it is called unsupervised. So let's see today's agenda. I will be discussing few things which you have not seen till now. I will be discussing these two things, that how this basis and variance of information is used in PCA. Change of basis क्या होता है, basis concept क्या होता है. So it is a very important part of PCA if you want to understand, and basis will be understood only if we discuss some linear algebra before it. Definition तो देखना ही है, and I will be covering PCA in detail and SVD in detail, all the concepts. We will be looking through numericals. So the basic intuition is that PCA is one of the most commonly used dimensional reduction even in industry. Maximum people कुछ भी करना हो, if we want to reduce number of features, we say PCA लगा लो, right? So everyone knows that PCA is required to reduce number of features, and I even gave the question of LASSO versus PCA in the MST. उसमें पीसी का मैथ्स तो नहीं पूछा, बस एक कंपैरिजन पूछा था, एंड दैट the major difference between these two were that इसमें क्या हो रहा था, हम अपने फीचर्स को डिस्कार्ड कर रहे थे. सपोज मेरे पास 5 फीचर हैं, तो उसमें से हम रैंडमली तो नहीं, बट यूजिंग सम मैकेनिज्म हम इसको और इसको लेट से जीरो कर लेते थे, इसके वेट्स को. तो उससे ये वाले डिस्कार्ड हो जाते थे, यूज नहीं होते थे, और फीचर सेलेक्ट होके 1 3 एंड 5 आ जाता था. बट इन पीसीए the concept is that we will use all these 5 features, and we will transform it to some other component, principal components, using the change of basis, and we will convert this into maybe 3D. 5D वाले को 3D में convert कर देंगे without discarding anything. तो in a way PCA उस form में better है, because we are actually using all the values whichever were there in the original data set, rather than discarding directly. कुछ फीचर्स को डिस्कार्ड ही कर दिया, लेसो में तो डिस्कार्ड कर देते थे. ठीक है, सो लेट्स look into why we need PCA. Obviously PCA is required. The major problem is the multicollinearity, because within the same number of features there might be a case that, let's say, second and third वाला आपस में highly correlated है, right? सिमिलरली पहला और फोर्थ वाला भी हाईली कोरिलेटेड है, तो हमें मतलब जो खुद में कोरिलेटेड हैं उनको हटाना है, एंड दिस इज एक्चुअली द मल्टीकोलिनिटी प्रॉब्लम. सो दिस विल हेल्प अस टू द पीसीए विल हेल्प अस टू डू दैट जॉब. So fundamentally, PCA is a dimensional reduction technique. It approximates the original dataset to a smaller one, and the concept is simple, that we want to reduce this big number of columns into lesser number of columns. Uh, so the explanation of this figure is on the next slide. The simple manipulation, this simple manipulation helps us in several ways. For example, अगर मुझे फीचर्स कम करके उसको डाटा विजुलाइज करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 3D वाला आई कैन नॉट विजुलाइज, और मे बी 3D तो चलो फिर हो जाता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लेके, बट अगर 4D या 5D है, आई कैन नॉट visualize that on my screen, right? So I need to convert that into 2D or 3D. अगर मैं 5D को कन्वर्ट कर दूंगा 3D में, एंड देन आई कैन विजुलाइज इट इजीली. सो दैट्स वाई विजुलाइजेशन में हेल्प करता है. फॉर क्रिएटिंग द अनकोरिलेटेड फीचर्स, ऑब्वियसली कोरिलेशन खत्म करना है, एंड फाइंडिंग द लेटेंट थीम्स इन द डेटा. If you have data set containing the ratings given to different movies in Netflix, PCA would be able to find the latent themes like genre, consequently the ratings. मतलब काफी अच्छे से हमें it can help us to work on
सम ऑफ द थिंग्स, अगर मुझे मूवी के बारे में जॉनर या रेटिंग कुछ भी निकालना है, then it is also helpful in noise reduction, because obviously अगर मेरे फीचर्स हाईली कोरिलेटेड हैं एंड नॉइज है बीच में डाटा में, तो अगर फीचर्स कम करेंगे तो नॉइज भी कम हो जाएगी. सो द व्हाट ऑफ पीसीए, लेट्स सी दैट होता क्या है, मतलब कैसे काम करना है. सो इट इज एक्चुअली डायमेंशन रिडक्शन, ये तो हमें पता है. सो डायमेंशन रिडक्शन इज एक्सरसाइज ऑफ ड्रॉपिंग द नेसेसरी वेरिएबल्स. ईडीए में हमने ये करा हुआ है पहले. ईडीए में द बेसिक प्रैक्टिस इज दैट वी विल ड्रॉप आउट द नल वाला कॉलम, और डुप्लीकेट कॉलम्स हैं तो उसमें से एक रख लो, एक छोड़ दो, राइट. सो एक बेसिक्स आइडिया है हमें डायमेंशन रिडक्शन का. सो व्हाट पीसीए डज इज इट कन्वर्ट्स द डाटा बाय क्रिएटिंग न्यू फीचर्स. एंड the original definition is that PCA is a statistical procedure to convert the observations of possibly correlated values to principal components. जो हमें principal components बनाने हैं, they should be uncorrelated with each other. They are the linear combinations of the original variables, and they help us in maximizing, capturing the maximum information. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आई हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन एंड कैप्चरिंग द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. तो इसको हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में. सो वी नीड some knowledge of linear algebra for understanding this, and we will start a journey, I mean on from the next slide. Vectorial representation of data, मैं vectors के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा. ये सारे हमें कंसेप्ट देखने हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस एंड देयर इनवर्स, बेसिस वेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ बेसिस क्या होता है, एंड हाउ दिस चेंज ऑफ बेसिस विल हेल्प अस टू गेट द जॉब डन फॉर पीसीए. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ओरिजिनल डेटा सेट है, ठीक है. एंड फॉर दिस ओरिजिनल डेटा सेट आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू ए वेक्टर फॉर्म. तो ऑब्वियसली मैं हाइट एंड वेट को ऐसे करके लिख सकता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में, कि पूरा पूरा कॉलम लिख दिया 165 155 ऐसे करके लिख दिया. सो द हाइट एंड वेट इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड मैट्रिक्स एज फॉलोज. each row representing particular patient's data, and each column, मतलब अगर पूरा एक रो देखो तो पेशेंट का पूरा डाटा है, एंड कॉलम में ओरिजिनल वेरिएबल जो भी ऊपर हैं गिवन है, ठीक है. तो रो और कॉलम का वैल्यू बता दिया. एंड इफ यू वांट टू विजुलाइज दैट, इट कैन बी विजुलाइज्ड लाइक दिस. अगर हम ओरिजिन से बनाएं, so these points can be plotted, and these 5 points will be looking like this on a graph sheet. So the vector representation says that the vector associated with the first patient is 165 and 55 value. Okay, this was the height, this was the weight. So this value can be written as in the following way: column containing the values along the rows, and this is known as column vector. Obviously अगर मुझे ऐसे दिखाना है तो ये column vector होगा. And as a transpose, मतलब इसको हम ऐसे करके ट्रांसपोज बना सकते हैं. दिस इज ए वेरी बेसिक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये हमें पता है. And in terms of basis vectors, the vector 165 and 55 can also be written as 165i plus 55j. तो ये हमें बेसिक्स पता है वेक्टर के, दैट x वाले वैल्यू के साथ हम i लगा देते हैं, y वाले वैल्यू के साथ हम j लगा देते हैं. एंड अगर इसी चीज को मैं एन डायमेंशनल कन्वर्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल वही पेशेंट की एज 22 थी, देन थर्ड डायमेंशन विल बी एडेड टू दिस डाटा, दैट 165 55 22 22 इज द एज ऑफ दैट पर्सन, ठीक है. एंड सिमिलरली अगर मेरे पास 10 वेरिएबल होते तो सेम थिंग, दिस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 10 डायमेंशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. And if you want to do some vector operations over it, so what we can do is vectors have a direction and magnitude. अब direction and magnitude के बारे में, it is class 11 concept, but quickly I will cover. So each vector has a direction and magnitude associated with it. Direction is given by an arrow starting from the origin and pointing towards the vector. जो पीछे हमने देखा था कि मतलब ऐसे करके origin से शुरू करके वो ऊपर जा रहा था ऐसे करके इस point तक, तो ये इसका direction था. And the magnitude is given by taking the sum of square of all the coordinates of that vector, and then taking its square root. Distance formula है simply, मतलब देखा जाए तो अगर let's say मेरे पास x वाले में 2 है, y वाले में 3 है, so we can find this hypotenuse, right? अगर मतलब बेस परपेंडिकुलर गिवन है तो वही चीज़ है यहाँ पे, वो चीज़ लगा के हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया उसका. Similarly for a vector in 3D, let's say this value, its direction is given by joining these 2 points origin के साथ. तो फिर this formula will be extended to this form.
मतलब ये बेसिक्स हैं बट थोड़े बता दिए सो दैट अगर किसी को नहीं याद रिवीजन हो जाएगा. सो वेक्टर एडिशन, व्हेन यू ऐड two or more vectors we essentially add their corresponding values element wise. मतलब नथिंग न्यू हेयर बट मतलब इतने बताया गया कि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे वेक्टर्स को तो एक्स वाले कंपोनेंट को ऐड करो 2+1, वाई वाले को करो 3+2. एंड इन द आई जी नोटेशन हम इनके साथ अगर आई जी भी लगा देंगे तो इट विल लुक लाइक दिस. तो इस केस में वही 3,5 विल बिकम 3i+5j. Similarly, this can be extended for multiple dimensions. Matlab main crux is that we can work with multiple dimensions using these concepts. And scalar multiplication, if you multiply any real number or scalar by a vector, then there is a change in the magnitude of this vector and the direction remains the same. The idea behind is that अगर ये 2 था इसका लेंथ and if I multiply it by 3 तो यही डायरेक्शन सेम रहेगी and it will become 6. तो ये 6 बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पे. मतलब बेसिकली इट डिपेंड्स कि पॉजिटिव है नेगेटिव है बट एक बता दिया. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें सबको पता है दैट इफ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस मैट्रिक्स बाय द सेकंड वन, the basic thing is the columns in the first should be equal to number of rows in the second and output will be m into n. This is very basic maths so I am quickly covering. And if I am multiplying this second row with the third column, the value here in the final matrix will be 2,3. ठीक है, second row है third column है तो मतलब इस एक वैल्यू के लिए हमें ये वाले सारे वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्डिंगली इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट हैज बीन शोन इन दिस एग्जांपल एट द बॉटम. इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स अगर निकालना है तो ऑब्वियसली वी नो दैट a into b is not equal to b into a, right, in matrix. Especially मतलब सिंपल एक लॉजिक है दैट अगर मेरा 2 into 3 है a एंड 3 into 2 है b, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन a into b होगा मेरा 2 into 2. ठीक है, मतलब अगर ये दोनों कॉमन हैं तो a एंड d विल बी माय काइंड ऑफ, अगर ये a b c d है a b c d तो a एंड d विल बी माय आउटपुट. सिमिलरली b इंटू a होगा तो इट विल बी 3 into 3 विल बी द आउटपुट. तो इक्वल तो नहीं है, इन्वर्स करना जरूरी है, ध्यान से करना जरूरी है. एंड इफ यू मल्टीप्लाई b इंटू a यू विल गेट द फॉलोइंग रिजल्ट. ठीक है, नाउ दिस मैट्रिक्स जो हमें ये मिला है अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इन मैट्रिक्स नोटेशन इट सर्व्स एज अ सेम फंक्शन एज द नंबर वन इन द रियल नंबर सिस्टम. जैसे नॉर्मल 1 2 3 4 काउंटिंग होती है, मतलब अगर मैट्रिसेस में देखा जाए तो आइडेंटिटी मतलब मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्पेशली ये वाला इन दिस केस फॉर 2D इज माय नंबर वन. जैसे अगर उधर 1 2 3 4 काउंटिंग है तो मैट्रिसेस का वन ये है. ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट्स व्हाट इज कॉल्ड हियर. मतलब to establish an analogy real number system, if you multiply n number by 1 you will get the number in itself. Similarly अगर identity matrix से multiply करोगे तो you will get the same matrix again and you can verify this. थोड़ा सा और देख लेते हैं. Now taking the analogy of real number system, if you multiply two numbers a and b, it comes to be a into b into 1. मतलब अगर इक्वल टू 1 आ रहा है करने पे रियल नंबर्स में इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल. ऑब्वियसली मतलब अगर मैं 3 और 1 by 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 1 हो जाएगा. इन दिस केस 3 and 1 by 3 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर अगर नंबर सिस्टम में देखा है. सिमिलरली मैट्रिसेस में यही चीज अगर हो जाए कि अगर मेरा a इंटू बी करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है जो कि रियल नंबर का 1 है, सो इन दैट केस हम उसी चीज को जो ऊपर हम रेसिप्रोकल कह रहे थे वही चीज यहाँ पे इनवर्स कहलाती है. ठीक है, एंड द इनवर्स ऑफ ए इज रिटन एज ए इनवर्स. ऐसे करके हम लिख सकते हैं एंड ए इनवर्स इनटू ए और ए इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. तो बेसिस की बात कर लेते हैं अब. आई एम क्विकली कमिंग टू द पीसी एंड पीसी का डिटेल बट एक बेसिस वाला कवर करना जरूरी है. एसेंशियली बेसिस इज अ यूनिट इन विच वी एक्सप्रेस द वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल अब क्या होता है कि अगर मेरा सपोज मैं कह रहा हूँ 23 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है, जो मैंने कवर करी एंड 23 सेंटीमीटर अपने आप में कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट 23 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर. मतलब एक बेसिस इसका 1 सेंटीमीटर है. मतलब 1 सेंटीमीटर अगर यूनिट है तभी वो 23 सेंटीमीटर बना पा रहा है. मतलब आइडिया बिहाइंड बेसिस इज दैट हमें एक बेसिक यूनिट निकालनी आनी चाहिए. एंड सिमिलरली अगर मैं वेक्टर्स के फॉर्म में बात करूं, अगर
let's say that I and j themselves are 1 comma 0 and 0 comma 1. You can represent any vector in the 2D space with these I and j vectors. If I have a equal to axi plus ayj, or it can be presented as like this, क्योंकि आई जे का मैंने ऊपर बोल ही दिया था कि ये है, तो वही चीज यहाँ पे लिख दी है. यू कैन विजुअलाइज दिस एज ए दिस फिगर. क्या हो रहा है, मतलब मेरा आई वाला कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट है, जे वाला इज वाई कंपोनेंट, और उसी चीज को हमने खोल के यहाँ पे लिख दिया दैट आई वाला मेरा 1 0 है, जे वाला 0 1 है. सो ए एक्स आई विल बी दिस एंड ए वाई जे विल बी दिस. मतलब ये दोनों चीजें हमने बेसिस के बेसिस, मतलब ऑन द डिस्कशन ऑफ बेसिस हमें ये इसको ऐसे प्रेजेंट करना जरूरी था टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस बेसिस कंसेप्ट वर्क्स. नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास 2,3 होता तो इट कैन बी रिटन एज 2 into this 1 0 and 3 into 0 1. सिंपल है. बट द आइडिया जो यहाँ पे इसमें चेंज करने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, मतलब ये तो चलो बेसिस का डिस्कशन हो रहा है, बट इफ आई वांट टू चेंज द बेसिस, इसका मतलब ये है कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट, लेट्स से मेरे पास 10 kg था, उसको आप पाउंड्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो वेट के हिसाब से, ठीक है. तो आई नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1 पाउंड का मेरे को पता है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 454 ग्राम्स, ठीक है. तो मे बी वी कैन कन्वर्ट 10 kg इनटू पाउंड्स ऑल्सो, है ना. तो वही चीज है, मतलब अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो, वैल्यू तो नहीं चेंज होगी, यूनिट चेंज करके उसका नंबर बदल जाएगा, पर रहेगा तो उतना ही. फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 फुट को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, तो मेरे को पता है इट इज 30.48 के आसपास का होता है 1 फुट. 1 फीट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर. तो फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, पाउंड को केजी में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है. तो या फिर केजी को पाउंड में कर देंगे, तो दैट थिंग इज डुएबल. एंड अगर हम इनकी यूनिट्स चेंज करके वैल्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड बेसिस का चेंज करना, चेंज ऑफ बेसिस इसी को कह रहे हैं हम. दैट here we had height in centimeter and weight in kg. On the right hand side we are having height in feet and weight in pounds. तो change in basis जरूरी है. So this basic concept of change of basis is being used in PCA. PCA में भी यही सब हो रहा है. उसका एक intuition मैं देता हूँ. उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं. सो लेट्स से दैट माय पेशेंट 1 इंफॉर्मेशन इज दैट सेंटीमीटर केजी स्पेस में उसका इतना आ रहा है कि मतलब 165 उसकी हाइट है, 55 उसका केजी वेट है. दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ये हो गया इसका फीट में 5.4 फुट हो गया, ठीक है. एंड 121 पाउंड हो गया, 55 केजी विल बी 121 पाउंड. उसी चीज को मतलब जो भी रखना है, तो यहाँ पे वो पूरा लिखा हुआ है दैट 1 फीट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.033 फीट. मतलब बेसिकली कंसेप्ट इज दैट यू हैव टू चेंज द बेसिस टू गेट द वर्क डन, अगर आपको उसको दूसरे फॉर्म में शो करना है. एंड दिस बेसिक आइडिया इज बीइंग यूज्ड, ये सारा आप देख लेना अपने एंड पे. बट द चेंज ऑफ बेसिस का कैलकुलेशन यही होता है दैट वट एवर द न्यू बेसिस रिप्रेजेंटेशन इज, आपको m एक फैक्टर होगा, m will be equal to this thing, मतलब new basis divided by old basis will be the value of m. in this case अगर मुझे पता है दैट अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है फीट को, तो मुझे 30.48 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है दैट इज माय दिस m. एंड अदर वे अराउंड अगर m इनवर्स निकालना तो ये होगा. सेंटीमीटर और फीट की बात हो रही है, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है 30.48. एंड अगर यही चीज 2D में करनी है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जो हम पीछे सिंगल वैल्यू के साथ करे थे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स के लिए करेंगे. एंड PCA का जो बेसिक कंसेप्ट है दैट्स PCA will help us to find the new basis vectors for us, and these new basis vectors are also called the principal components. जो principal component हम निकालते होते हैं, you must be remembering some steps के हम initially PCA अगर हमने suppose निकालना है तो क्या होता था. there were 5 steps. Initially we used to calculate the covariance matrix, then we used to calculate the eigenvalues, फिर हम आइगन वैल्यूज को यूज करके आइगन वेक्टर निकालते थे. ये 3 स्टेप थे. एंड देन वी यूज टू सॉर्ट द आइगन वेक्टर्स. तो वो सारा जो प्रोसेस है, इंडियन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हमें निकाल के देता है. PC1 PC2 PC3 ऐसे करके आते होते हैं. तो वही प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हमारे बेसिस वेक्टर्स होते हैं, जो हम अभी तक बेसिस बेसिस कर रहे थे. these new basis vectors are actually the principal components for us.
So let's say we represent the data using these new principal components by performing the change of basis calculation. And after doing the change of basis, we can perform the dimensional reduction. In fact, PC will find us a new basis. वही सब बातें लिखी हुई हैं. The basic intuition is this, that अगर मेरे पास ये original data set है, first वाला, ठीक है, and you want to convert it into a lower dimension space, तो x y को हमने convert करके सिर्फ x new कर दिया, y new को discard कर दिया. तो एक मतलब बेसिक इंट्यूशन यही है कि हम ज्यादा फीचर्स को कम में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें से एक जीरो हो जाएगा, दूसरे वाला मतलब एक्स और वाई दोनों को कंबाइन करके रिप्रेजेंट कर देगा किसी फॉर्म में. एंड लेट्स यूज दिस this knowledge of bases and let's visualize कि PCA कैसे काम कर रहा है. We will see the example also now. So principal component analysis, it's a technique of dimensional reduction, and for example we want to convert this 3D thing into 2D. तो मुझे उसको अपना अगर मैं देखने का नजरिया बदल लूं, इस वाले प्लेन को अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूं, तो मेरे को ये रेड वाला, ये ऊपर ग्रीन वाला, नीचे पिंक वाला, राइट पे ब्लू वाला, ऑल दीज विल बी सीन फ्रॉम दिस टॉप व्यू एज दिस थिंग, है ना. तो वो नजरिया बदलने को ही तो प्रिंसिपल कंपोनेंट कह रहे हैं हम, कि मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट करके दिखाओ, देखने का नजरिया बदल दो, बेसिस बदल दो, यूनिट बदल दो. ठीक है. सो लेट्स सी क्या उसके हैं, मतलब what are the major facts about PCA. Principal components are the new features that are constructed as a linear combination or mixture of the initial feature set. These combinations is performed by in such a manner new principal बन जाते हैं. ठीक है, देखते हैं, आप कंसेप्ट देखते हैं. So originally मतलब जो हम जैसे principal component कहते हैं, so it is presented as PC1 PC2, मतलब PCI करके, मतलब principal components को हम लिख देते हैं 1 2 3 4. and in this generally PC1 has the major weightage, जिसके पास सबसे ज्यादा मतलब that will be very helpful. उसका सबसे ज्यादा contribution है हमारे डेटा सेट को संभालने में, जो हम वो प्रेजेंट करके हमें दे रहा है. सो PC1 इज द मेजर वन. उसके बाद PC2 PC3, ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो नंबर गिरता जाएगा PCI का, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू वी कैन से दैट जितना पहले आएगा प्रिंसिपल कंपोनेंट, उसका वेटेज उतना ज्यादा होगा. So geometrically, it can be done. It can be said that the principal components are the lines pointing the direction that captures maximum amount of information. जो भी है तो principal components हमारे काफी ज्यादा information लेके बैठे हैं. So now let's see there are total 5 steps for calculating the principal component analysis. सबसे पहले we will be calculating the covariance of x and y, and this will be kind of n into n. अगर मेरे पास n features हैं, ठीक है, अगर मेरे पास n फीचर्स हैं एंड देयर आर m नंबर ऑफ रोज, ये m है, तो विदाउट केयरिंग अबाउट m मुझे सिर्फ n पे फोकस करना है. अगर मेरा n 5 था तो मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स विल बी 5 into 5. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. सो जो भी मेरे फीचर्स हैं मुझे इनका आपस में कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना है, एंड द फॉर्मूला इज दिस वन. इसको देखते हैं आगे एग्जांपल में कि कैसे हमें हेल्प कर रहा है. एंड देन यू विल हैव टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज, जिसके लिए यू हैव टू फाइंड दिस डिटर्मिनेंट a minus lambda i. Lambda will be the value that will help us to get the eigen values, and I is my identity matrix. तो इसको भी देखेंगे how it is helping to get the values of eigen values. ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल के, and then those whatever we have calculated before, those eigenvalues will be helping us to get the eigenvectors using this formula, जहाँ पे हम एक x एक बना लेंगे मैट्रिक्स, and that matrix have to be found, and that will be used as one of the eigenvector for us. Then we will sort the vectors in the decreasing order, and then transform the data. जो भी final transformation लेके आना है principal component का, वो चीज़ हम calculate करेंगे final. So let's say that my data set is this x and y. So if we want to compute the covariance matrix 2D में ऐसे होगा, क्योंकि दो ही फीचर हैं, है ना. तो अगर दो फीचर हैं तो it will be like this. कोवेरियंस x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, xy का यहाँ आ जाएगा, yx, and this is the formula. So for calculating all those values, जो मैं पीछे लिख रहा था कि हमें कोवेरियंस ऑफ xx निकालना है,
तो एक्स एक्स निकालने के लिए ये चीज का फॉर्मूला लगेगा, मतलब ये वाला कॉलम इज माई कोवेरियंस एक्स एक्स, दिस column is my covariance yy, and this column is my covariance xy. So we know the formula and we have got all the values. In the end आप उनका average ले लोगे, so covariance xx value is the mean of this full column, तो that is 0.6165. yy का आ रहा है इतना, xy का या yx का, मतलब आप इसको आगे पीछे लिख भी लोगे मल्टीप्लाई होके वैल्यू तो उतना ही आएगा, तो दैट्स वाई वाई एक्स एंड एक्स वाई का द वैल्यू विल बी कॉमन लाइक दिस। इन ये सब निकालने के लिए सबसे पहले आपको x और y का मीन निकालना पड़ेगा। इनिशियली इन दोनों का मीन निकालोगे, देन यू विल कैलकुलेट दीज टू कॉलम्स एंड देन सिमिलरली अदर कॉलम्स। तो करते कराते आपके पास ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे, एंड देन इफ यू कैलकुलेट, स्टेप्स याद होंगे, सो वी विल कैलकुलेट नाउ द आइगन वैल्यूज। उसके लिए अब मुझे ये डिटर्मिनेंट वाला पार्ट लगाना है। सो जो मेरे 4 वैल्यूज आए थे कोवेरियंस मैट्रिक्स के, दैट कोवेरियंस मैट्रिक्स के साथ मैं माइनस लैम्डा आई लगाऊंगा, तो मेरा ये बन जाएगा लैम्डा इनटू आई इज माय 2D में 1001। एंड इफ यू सॉल्व दिस मैट्रिक्स, अब इसको आप अगर इक्वेशन में डाल दो, if you want to solve this matrix and you want to equate it to 0, you will get the value of lambda 1 and lambda 2 as this. इसको solve करने के लिए I will give you a basic idea. You have to solve like this: 0.6165 minus lambda into 0.7165 minus lambda, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद you will do minus of ये वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.6154 whole square and equal to 0. So if you want to solve this equation, अगर आप इसको solve करोगे, you will get the जो सेकेंड लास्ट लेवल पे, मतलब जो फाइनल इक्वेशन मिलनी है आपको सॉल्व करने के लिए, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1.333 लैम्डा। ये मैंने अपने एंड पे सॉल्व करा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। You can verify these two numbers by putting into this equation and you will know that the answer is correct. Plus 0.063003 equal to 0. So this is the final equation which you need to solve to get the values of lambda. जो दो वैल्यू आने हैं वो इस इक्वेशन में डाल के आने हैं, ठीक है। both these values you can substitute and verify that the values are correct. Now let's say that we have got those values, हमारे पास वो lambda दोनों आ गए हैं, उसको हमने डाल भी दिया, lambda 1 को भी डाल दिया माइनस करके, lambda 2 को भी डाल दिया, and these are the matrices जो मुझे मिले, ठीक है। now I will multiply that, ये वाला x वाला मैट्रिक्स है ना, दैट विल बी v1 एंड v2, टू वेक्टर्स हैं x1 x2 x1 x2 बोथ केसेस। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द मैट्रिसेस, x1 x2 का वैल्यू भी आ जाएगा दोनों के केस में, एंड दैट विल गिव मी माय v1 एंड v2, मतलब आइगन वेक्टर 1 एंड आइगन वेक्टर 2. So let's say this is my pc1, this is my pc2. Now vectors corresponding to highest eigen value of considered as pc1. अब यहाँ पे इन दोनों की वेटेज का देख लेते हैं, नीचे ना वेटेज लिखा हुआ है। सो दिस वेटेज ऑफ 96% एंड 4% कहाँ से आया, ये आया पीछे से, जो हमने पीछे वैल्यूज निकाले थे 1.28 एंड 0.049, ये दो लैम्डा आए थे मेरे। तो इन दैट केस अगर मुझे लैम्डा 1 का वेटेज निकालना, आई विल डू दिस फॉर्मूला लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मल्टीप्लाई 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली 96% आ रहा है। सिमिलरली लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मल्टीप्लाई 100, दिस इज कमिंग आउट टू बी नियरली 4%, ठीक है। और यही चीज हमें आगे लिखी हुई है, वेटेज के बारे में बात हो रखी है। सो दैट्स व्हाट इज pc1 एंड pc2, वैल्यूज हमें गिवन है, एंड देन यू कैन फाइंड द फाइनल डेटा सेट जो आपको लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे दो ही हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट। सो यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, आपके फीचर वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल डेटा सेट के साथ ट्रांसपोज करके, and that's how you will get the final principal components. Now starting with the svd part, we still have I guess है अभी 15 मिनट है। आई विल कवर दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। इसमें मेनली हमें कैलकुलेशन करना है, वी नीड टू सॉल्व दिस मैट्रिक्स इन लीनियर अलजेब्रा। द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन इज ए फैक्टराइजेशन ऑफ रियल और कम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है इन 3 पार्ट्स में, वेयर माई u एंड v आर द कॉलम यूनिट ऑर्थोनॉर्मल vectors, and this sigma m into n, this sigma is my rectangular diagonal matrix whose diagonal entries are singular values of matrix A.
इस केस में आई वांट टू हाईलाइट वन थिंग दैट ए का जो डायमेंशन है m/n और इसका सिग्मा का है, इट इज एक्चुअली इक्वल. तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दिस सिग्मा वाला पार्ट. वी नीड टू टेक केयर, अगर मेरे पास सपोज अब मुझे पता है ये सिंगुलर वैल्यूज निकालने, इसमें आइगन वैल्यूज का भी हेल्प लेना पड़ेगा. तो हो सकता है कि मेरे पास आइगन वैल्यू 2 आ रहे हैं और मेरे को साइज चाहिए था 3 का. तो इन दैट केस वी माइट नीड टू पुश. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू आया 5, एक वैल्यू आया 3. तो वो 2 की बजाय अगर 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम उसको एक्स्ट्रा एक जीरो लगा के पैडिंग कर देंगे एंड वी विल कन्वर्ट दैट इनटू डायमेंशन ऑफ 3 अगर मेरा ए 3 into 3 का हुआ. ठीक है. सो द नंबर ऑफ नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज इन इज द रैंक ऑफ ए. मतलब एक बेसिक सा कंसेप्ट पता चल गया दैट सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में वी हैव दीज थ्री कंपोनेंट्स एंड वी हैव टू डू सम मैथमेटिक्स टू गेट द वैल्यूज डन. तो यू एंड वी आर ऑर्थोनॉर्मल, इसका मतलब ये है दैट यू इंटू यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इनवर्स. मतलब आई इज माई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और अगर यू इंटू यू ट्रांसपोज करके आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब दीज टू आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. जो हमने जैसे पिछली बार एक डिस्कस किया था रियल नंबर्स के लिए, द नंबर्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. वहां पे हम नंबर्स को कहते हैं कि ये नंबर मेरा इनवर्स है उसका, है ना, रेसिप्रोकल है. इनवर्स तो नहीं बट रेसिप्रोकल है. इन दिस केस इन मैट्रिसेस ये इनवर्स है, अगर वो रेसिप्रोकल था यहाँ पे इनवर्स होगा. तो सिंगुलर वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स m/n is the positive square root of the eigen values. सिंगुलर वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए मुझे आइगन वैल्यू भी निकालने हैं. सपोज आइगन वैल्यू 25 है, उसका स्क्वायर रूट करके 5 वैल्यू आ जाएगा. पॉजिटिव वाला पार्ट रखना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट रखना है. तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 करना है 3 वैल्यू को पिक करेंगे और 25 करना है तो 5 करेंगे. आई एम पर्टिकुलरली यूजिंग दीज टू वैल्यूज बिकॉज यही आगे स्लाइड में यूज्ड है. So let's say we want to compute all these three parts. So lambda, the sigma is a rectangular diagonal matrix of singular values of A. तो सबसे पहले यही calculate कर लेते हैं. To compute it, we have to find the eigen values of A transpose A या फिर A transpose, दोनों में से एक choose कर लो. So for example हम A transpose A के साथ करते हैं. तो find the lambdas such that A transpose A minus lambda I equal to 0. Compute the positive square root. मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, तो आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगे, उसको डायगोनली पुट कर देना अपने उसमें मैट्रिक्स में. तो जो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आ रहा है, तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसे करके फिल कर दिए जाएंगे एंड ऑल अदर वैल्यूज विल बी 0. ठीक है. तो ऐसे करके एक मैट्रिक्स बन जाएगा. नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व इट यूजिंग v, अगर फॉर एग्जांपल मुझे v को यूज करके करना है. सो v इज द कॉलम नॉर्मलाइज वेक्टर ऑफ a ट्रांसपोज a एंड a ट्रांसपोज a को हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज आई नो दैट a इज इक्वल टू u सिग्मा v ट्रांसपोज. तो a ट्रांसपोज a विल बी लाइक दिस. तो अगर मैं इसी का u सिग्मा v ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहा हूँ बाय रूल ऑफ मैट्रिसेस, ये बन जाएगा मेरा मतलब डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी. ठीक है. अभी लेफ्ट टू राइट है तो राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा. v ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल, सिग्मा ट्रांसपोज एंड यू ट्रांसपोज. तो ये डायरेक्शन उल्टी होके ये बन जाएगा. वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है और सेकंड वाला तो एज इट इज लिखा हुआ है. एंड वी नो दैट यू इनटू यू ट्रांसपोज इनटू यू हमारा आइडेंटिटी था. तो आई लिख के उसको उड़ा दो, बचा मेरा ये वाला पार्ट. सो वी सिग्मा सिग्मा ट्रांसपोज वी टी. एंड नाउ बिकॉज आई नो दैट अगर मेरा मतलब पीछे हमने बोला था कि जो सिग्मा है वो डायगोनल मैट्रिक्स है. सो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सपोज 2 and 3 था तो वो डायगोनल्स पे ही वैल्यू पड़े हैं. ठीक है. तो अगर मैं इसी का इनवर्स ट्रांसपोज करूंगा, माय रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो. तो इन एनी केस डायरेक्शन चेंज करके भी कुछ फर्क नहीं पड़ा. तो दैट्स व्हाई हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिग्मा स्क्वायर बोल सकते हैं. वही चीज यहाँ पे करी हुई है. ठीक है. So sigma square is the eigenvalue matrix of A transpose A. So according to the diagonalization process, मतलब जो भी है ऊपर हमने सॉल्व कर दिया. एंड फाइनली वी कैन से दैट V represents the eigenvector of A transpose A and since it is a column unit vector, मतलब यहाँ पे इस केस में जो मुझे जो eigenvector निकालना था वो मेरा V निकला. ठीक है. बिकॉज आई वॉज सॉल्विंग इट फॉर ए ट्रांसपोज ए, तो मेरे लिए v मेरा आइगन वेक्टर है. सिमिलरली अगर मैं ए ट्रांसपोज के लिए निकालूंगा देन u विल बी माय आइगन वेक्टर. और वही चीज अगली स्लाइड पे गिवन है. सो सॉल्विंग एवरीथिंग फॉर u, कैलकुलेशन हम करेंगे ए ट्रांसपोज की.
सब कुछ सॉल्व करने पे हमें पता चला दैट वी गॉट दीज वैल्यूज u sigma square and u transpose as the final value equal to a transpose, where we can say that this my sigma square is the eigenvalue matrix of a transpose and u is my eigenvector of a transpose. तो ये दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. न्यूमेरिकल देख लेते हैं. यहाँ पे एक ये भी लिखा हुआ है दैट इफ यू हैव एनी वन ऑफ इट, सेकंड वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है. ठीक है. एंड एक फॉर्मूला एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ए गिवन है एंड आई वांट टू सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू यू सिग्मा बी ट्रांसपोज. ठीक है. सबसे पहले तो मुझे आइगन वैल्यू निकालने हैं. आइगन वैल्यू निकालने के लिए आई विल सॉल्व ए ट्रांसपोज. ठीक है. ए ट्रांसपोज करा एंड डिटर्मिनेंट करके वो वाला रूल लगा के मुझे ये वैल्यू मिल गई दैट दीज टू आर माय वैल्यूज जिसके बेसिस में मुझे आइगन वैल्यू निकालना है. वेयर माय लैम्डा केम आउट टू बी 25 एंड 9, बट मुझे पता है सिंगुलर वैल्यू होता है इन दोनों का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो दैट विल बी 5 एंड 3. ठीक है. बट अगर मुझे पता था दैट ए मेरा पीछे गिवन है उसका जो डिमेंशन था दैट वाज 2 into 3, तो मेरा इसका भी डिमेंशन 2 into 3 होगा. उसको बनाने के लिए 2 into 3 व्हाट वी डिड 5 3 को ऐसे लिख के साथ में 0 0 लगा दिया. डिमेंशन मेरा सेम एज ए होना चाहिए. ठीक है. दैट्स व्हाट इज रिटन हियर. यहाँ पे 3 into 3 बनाने के लिए हमने 25 9 एंड 0 कर दिया. तो तीसरा मतलब 0 कंसीडर करके 0 के हिसाब से कर दिया काम. Then if you want to find all the values, so to find we find the column V by finding the orthonormal set of vectors. जो पीछे हमने देखा था वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है. अब for lambda equal to 25 वैल्यूज इसमें डालोगे तो ये वाला मैट्रिक्स आएगा एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट द कॉलम नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर. इसको सॉल्व करके यू विल गेट दिस वैल्यू एज V1. सेकेंड पार्ट को 9 के हिसाब से सॉल्व करके यू विल गेट दिस वैल्यू एज V2 एंड सिमिलरली 0 डालोगे तो 0 डालने पे थर्ड वाला ये आएगा. तो हमारा जो V मैट्रिक्स था वो ये आ गया. ठीक है. एंड दिस इज माय आइगन वेक्टर, जो हम पीछे कह रहे थे कि V विल बी माय आइगन वेक्टर. सिमिलरली आप U भी कर सकते हो. मेरे पास अगर V आ गया तो U भी आ जाएगा यूजिंग दिस फार्मूला. एंड अगर मेरा U ये आ गया तो आप U सिग्मा B ट्रांसपोज को ऐसे करके लिख सकते हो. एंड दिस इज द डिटेल्ड वर्जन ऑफ U सिग्मा एंड V ट्रांसपोज. हमने सबसे पहले V निकाला, सिग्मा हमारे पास था ही जो हमने सबसे पहले सिग्मा निकाला जो हमारे 530 आया. फिर हमने V निकाला उसका V ट्रांसपोज करके यहाँ लिख दिया और U को हमने फार्मूला के बेसिस पे सॉल्व करके इधर लिख दिया. नाउ let's quickly cover a bit about dimensional reduction, that how this SVD calculation जो हमने अभी तक करा है वो अभी तक हमने singular value decomposition mathematics solve की है, but we have not discussed it from the dimensionality reduction point of view. अब आखिरी 5 मिनट इस पे भी लगा लेते हैं. So for SVD being used for dimensional reduction, SVD is used for dimensional reduction by using the compressed SVD. ठीक है. तो compressed SVD नाम का एक फंक्शन होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद ये हमारे उसमें भी है इन आर QML डॉक्यूमेंटेशन. सो अगर वहाँ पे SVD वाला हुआ तो वी विल implement that. In compressed SVD, dimensional reduction is done by neglecting small singular values in the diagonal matrix. अब इसमें ये बात हो रही है कि अगर आपके बहुत सारे हैं तो आप उसमें क्या करो, छोटे वालों को छोड़ दो, सिर्फ मेन को रख लो. मतलब जो हमारे सिंगुलर वैल्यूज जो जैसे 0 के आसपास के हैं, 0 0 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आ रहे हैं. ठीक है. अगर नंबर छोटा तो उसको डिस्कार्ड कर दो. उससे क्या होगा, हमारा डिमेंशन रिड्यूस हो जाएगा. मतलब मेन थिंग इज दैट फॉर एग्जाम्पल घूम फिर के हम वहीं पे आ रहे हैं. अगर मेरा सपोज 100 डिमेंशन था और 100 के लिए हमने सबके लिए वो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन लगा के सबके वैल्यू निकाल दिए और उसमें से जैसे पीसी में हम डिस्कार्ड करते थे इसमें भी डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारा 100 वाली चीज कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू 3D. तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है जो ये नीचे बता रहे हैं कि जी हम ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे. मतलब दिस इज P is called the rank in this form जहाँ पे मेरा lambda sigma का dimension is P into P and this P value is being called the rank of the matrix. ठीक है. एंड यहाँ पे SVD और PC का रिलेशनशिप बताया जा रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सब लिखा तो हुआ ही है. आई विल क्विकली कवर दिस. दोनों का रिलेशनशिप देखना है तो सबसे पहले सपोज मैं पीसी का देख रहा हूँ. पीसी में ना हमने एंड में बोला था कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रांसपोज इसको दोनों को. ये वाली चीज हमने पीछे स्लाइड में देखी थी. एंड दैट कैन बी रिटन एज ए इंटू वी ऑल्सो. ठीक है. रूल के हिसाब से V ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इंटू वी. तो
if I have A as m into n, m is my data value, n is my feature, तो इस केस में मैं पहले कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालूंगा n into n का. जब कोवेरियंस मैट्रिक्स आ जाएगा डिकम्पोज करके आई विल फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. x इज माय आइगन वैल्यू, x इज माय आइगन वेक्टर. जो हमने x निकाला था, हर बार हम x मल्टीप्लाई करवाते थे एंड उसको सॉल्व करते थे, v1 v2 निकाला था एंड में. एंड दिस इज माय लैम्डा, दिस लैम्डा इज माय आइगन वैल्यूज. So a minus lambda I into x equal to 0. इसको सॉल्व करोगे तो you will get a equal to x into lambda into x transpose. Similarly, मतलब based on this you can obviously multiply the eigenvector with this right side पे जो a निकाला a into x करके. This is my final transform data set based on PCA. ये मेरा बेसिक मैथ्स था पीसीए के लिए. सिमिलरली अगर मुझे एसवीडी के लिए करना है, एसवीडी इज माय यू सिग्मा वी ट्रांसपोज वेयर सिग्मा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड डायरेक्शंस ऑफ मैक्सिमम वेरिएंस भी इसको बोल सकते हो. एंड अगर मेरे बहुत सारे ऐसे करके सिग्मा आ रहे हैं, उसमें से मैं देख लूंगा कि हो सकता है पहले तीन मेरा 92% वेटेज वाले हैं जो मेरा 92% रिजल्ट पे इफेक्ट डाल रहे हैं, तो आई विल डिस्कार्ड द अदर 8%. सो इन दैट केस जो मैंने अभी पीछे बताया था कि हम 100D को 3D कर देंगे, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि आप m इंटू एम को m इंटू 3 में मतलब के साथ मल्टीप्लाई कर दो रेदर देन हैविंग दैट m इंटू एम वाला ही. ठीक है, मतलब उसको उतना बड़ा मत रखो, जितना ओरिजिनल डिमेंशन था उसको कम कर दो, सिर्फ 3 रख लो. तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन से दैट u into sigma m into 3 will be my new transform data set for SVD. एंड ये पीछे मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्व किया हुआ है फॉर दिस सेंट, मतलब कोवेरियंस के हिसाब से सॉल्व करवा रिलेशनशिप दिखाने के लिए. दिस इज ऑल्सो इन द कमिंग अपकमिंग स्लाइड्स आई विल डिस्कस देयर. सो एसवीडी फॉर डिमेंशनल डिडक्शन, द कंसेप्ट इज दिस कि मेरे को तीन चीजें करनी है, यू सिग्मा वी ट्रांसपोज. एंड एप्लीकेशंस में वी कैन से दैट हम इसमें स्पार्सिटी, मतलब जब हमारा डेटा सेट स्पार्स होता है देन माय एसवीडी कैन बी वेरी हेल्पफुल. सो दिस इज ए वेरी गोल्डन रूल. क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन दिस एग्जांपल प्रीवियसली आल्सो. अगर मेरे पास फेस रिकॉग्निशन का डेटा सेट है एंड उसमें मैं फेशियल लैंडमार्क्स पे काम कर रहा हूँ, लैंडमार्क्स का मतलब है कि मैं एक फेस का फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आईज हैं, नोज है, हैंड, मतलब ड्राइंग इज वेरी बैड बट कंसेप्ट इज दिस कि अगर मेरे को आईब्रोज के पॉइंट पता है, आईज के पॉइंट पता है, लैंडमार्क्स ये होते हैं कि हमें पॉइंट्स पता होते हैं कॉर्नर्स के या फेशियल पॉइंट्स के, मतलब फेशियल पॉइंट्स के लैंडमार्क्स बोलते हैं. ठीक है, इसको 2D 3D कुछ भी हो सकता है. तो उस केस में क्या होता है, फ्रंट व्यू का लेट्स से 30 पॉइंट्स हैं, पर साइड व्यू का अगर मैं इसको सिर्फ ये वाला साइड देखूं, ये वाला साइड मेरे को नहीं दिख रहा, तो मेरे पास पॉइंट्स आधे रह गए है ना. तो उसमें क्या हो रहा है कि मेरे एक रो में 30 पॉइंट्स हैं, दूसरे रो में 15 पॉइंट हैं, तीसरे रो में 20 पॉइंट हैं, तो डिपेंडिंग ऑन पोज वो पॉइंट कम ज्यादा होते हैं. तो ऐसे वाले केस में एसवीडी कैन बी वेरी हेल्पफुल टू लेट्स से टू ब्रिंग देम इनटू, सबको 10 10 10 के फॉर्म में लेके आना है. तो वो 30 को भी 10 में कन्वर्ट कर देगा, 15 को भी 10 में कन्वर्ट कर देगा, 20 को भी, तो वो हमारा डेटा सेट यूनिफॉर्म हो जाएगा. सो एसवीडी कैन बी हेल्पफुल इन दैट केस. स्पार्स डाटा रेफर्स टू, यहाँ पे मतलब वही सब बातें बताई हुई जो मैं अभी बोल के हटा हूँ. एंड दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस. रिकमेंडर सिस्टम में यूज हो सकता है, कस्टमर प्रोडक्ट परचेजेस में, यूजर सॉन्ग लिसन काउंट्स, मतलब कितनी बार सुन रहे हो, है ना. तो जहाँ जहाँ पे स्पार्सिटी हो सकती है हर जगह ये यूज हो सकता है, डिमेंशन रिडक्शन में हेल्प करता है. सो यहाँ पे जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी ने पहले 4 यूजर्स ने पहली 3 मूवीज देखी हैं और रेटिंग दे दी, एंड सिमिलरली अगले 3 यूजर्स ने आखिरी वाली 2 मूवीज देखी हैं, उसकी रेटिंग दे दी, पहली 3 नहीं देखी, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस कंसेप्ट. ठीक है, इसको मतलब यूजर्स टू मूवी मैप करके 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करके एसवीडी कैन हेल्प. सो वही चीज जो पीछे मैं बता रहा था कि ये कोवेरियंस मैट्रिक्स होता है, वो अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ. दिस इज द सेकंड लास्ट स्लाइड एंड देन आई एम एंडिंग द लेक्चर. लेट द डेटा मैट्रिक्स x be of size n into p, where n is the number of sample and p is the number of variables. P into p will be the covariance matrix, where c is the symmetric matrix. यहाँ पे हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, where v is a matrix of eigenvectors, b मेरे eigenvector है, and l is my diagonal matrix with आइगन वैल्यूज लैम्डा आई इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, मतलब एक ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में. आइगन वेक्टर्स आर द प्रिंसिपल एक्सेस और द प्रिंसिपल डायरेक्शंस एंड कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये सब वही, मतलब जो ऊपर ये लिखा है इसी को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं. एंड रिलेशनशिप इज दिस दैट यू कैन एक्चुअली से दैट अगर मैं इसको सी को x ट्रांसपोज x अपॉन n-1 लिख रहा हूँ, तो
इसमें अगर मैं एसवीडी वाली वैल्यू डाल दूं, उसको सॉल्व करूं, तो हमें ये मिल रहा है एंड में, ठीक है। एंड वी आर द प्रिंसिपल डायरेक्शंस, इस केस में प्रिंसिपल डायरेक्शन वी हो जाएगा, एंड दैट द सिंगुलर वैल्यूज का फॉर्मूला ये हो जाएगा सेंटर वाला, है ना। इन दैट केस ट्रांसफॉर्म डाटा कैन बी लाइक दिस। तो इसमें अगर एक्स वी मेरा पीसीए था, यू सिग्मा मेरा एसवीडी था, तो ऐसे करके इक्वेट हो गया। सो दैट इज द एक्चुअल relationship between PC and SVD. So that's all for today. PC and SVD is complete, and all the other left out topics of clustering unit will be completed tomorrow, and then clustering will be over. That's it for today.